In today's lecture, we are going to see one problem of convolution theorem, which yesterday I had told you all, the third problem which we didn't do, that problem we will see it today. Okay, so that is one problem on convolution theorem which is remaining, that we will complete today. Then we will see the last type of problem, that is how to find inverse Laplace transform when we have log function, tan inverse or cot inverse. Okay, these are the commonly used function, that is logarithmic and inverse trigonometric functions when we have. Okay, so how to find the inverse Laplace transform of such functions. This is what we are going to see. So before that, let's quickly recall what we have seen in the previous lecture. Previous lecture, we have seen problems based on convolution theorem. What is convolution theorem? If Laplace inverse of phi 1 of s equal to f1 of t and Laplace inverse of phi 2 of s equal to f2 of t, then Laplace inverse of their product phi 1s into phi 2s equal to integral 0 to t f1u f2 t minus u du. Okay, so this is the statement of convolution theorem for inverse Laplace transform. We have been seeing problems based on that. Now let us see the last type of problem in convolution theorem. So using convolution theorem, find Laplace inverse of s plus phi the whole square upon s square plus 10s plus 16 the whole square. So let us see what is different in this question. So first of all, when we look at the we have to find inverse Laplace transform. So सबसे पहला हमारा ध्यान जाएगा डिनोमिनेटर में. So when we look at the denominator is quartic, मतलब s raised to 4 है इसका denominator का power. Okay, so here we have a repeated factor. The repeated factor is a quadratic factor and this is not in the standard form. Okay, so ये denominator को सबसे पहले हमें standard form में लाना है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए एस स्क्वायर वाला टर्म देखेंगे, 10 इंटू एस वाला टर्म देखेंगे. ये एस हमें एस स्क्वायर से मिला है, तो इन दोनों टर्म को लेके लास्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बने. ओके, ये एस स्क्वायर ने एस को कंट्रीब्यूट किया है, ये मिडल टर्म होगा, तो ये 10 में से हमारा लास्ट टर्म मिलेगा. ये 10 को हम कंसिडर करेंगे 2 इंटू 5. ओके, मतलब लास्ट टर्म होगा 5 स्क्वायर. All right, so we can directly find it out like this also instead of using the formula. So यहाँ पर 25 is the last term, so we adjust that 25. So this would be Laplace inverse of s plus phi the whole square upon s square plus 10s plus 25 plus 16 minus 25. अब ये s square plus 10s plus 25 जो है ये perfect square है. So what is this? This is s plus phi the whole square, and this plus 16 minus 25 gives us minus 9. Okay, the whole square. So in this problem there are two things that is different. एक तो है यहाँ पर डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर नहीं है, तो वी हैव टू कंप्लीट द स्क्वायर, यूज शिफ्टिंग थ्योरम एंड गेट द स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर. वो पहली बात है. ओके, दूसरी बात क्या है, अब तक हमने जब स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर देखा है, वी हैव क्वाड्रेटिक में वी हैव सीन द डिनोमिनेटर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्म. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम फर्स्ट शिफ्टिंग यूज करेंगे, उसके बाद हमारा जो स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर है वो एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में होगा. ओके, सो दिस इज द सेकेंड थिंग दैट इज डिफरेंट इन दिस प्रॉब्लम. ऑल राइट, अब ये हमें लप्लास इनवर्स मिल गया है. यहाँ पर ये स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर में लाना है, तो ये s प्लस 5 के जगह पे हमें s चाहिए, तो न्यूमरेटर में भी s प्लस 5 है, तो हम यहाँ पर आराम से रिप्लेस कर सकते हैं. तो हियर व्हेन वी रिप्लेस s प्लस 5 बाय s, तो हमें बाहर किससे मल्टीप्लाई करना है, e रेस टू माइनस 5t से. तो ये हमने यहाँ पर e रेस टू माइनस 5t से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर s प्लस 5 के जगह पे s लिखा. सो वी गेट लप्लास इनवर्स ऑफ s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर माइनस 9 द होल स्क्वायर. ओके, अब ये वाला जो लप्लास इनवर्स है, इतना सा पार्ट के लिए हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करेंगे. सो वी आर नॉट यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम टू दी क्वेश्चन में जो फंक्शन है उस पर हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूज नहीं कर रहे. उसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो फंक्शन मिला है इस पर हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूज कर रहे हैं. तो उसके लिए सबसे पहले
इस फंक्शन को हमें लिखना है एज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो हियर इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये e raised to -5t s स्क्वायर माइनस 9 द होल स्क्वायर है, तो एक s स्क्वायर माइनस 9 यहाँ पर, एक s स्क्वायर माइनस 9 यहाँ पर, न्यूमरेटर में s स्क्वायर है तो एक s यहाँ पर, एक s यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों फंक्शन सेम है। ओके, सो वी हैव रिटन दिस एज अ प्रोडक्ट। तो हियर we can take any one as our phi 1 phi 2 दोनों same है, so it actually doesn't matter. तो we are taking phi 1 s, it is s upon s square minus 9, phi 2 s is also s upon s square minus 9. easier function, यहाँ पर दोनों same है तो ये easier function का concept नहीं है। okay, now this completes our step 1 जहां पर हमने phi 1 और phi 2 को आइडेंटिफाई किया। नेक्स्ट स्टेप 2 में हमें क्या करना है, इस phi 1 का लैप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना है, phi 2 का लैप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो लेट्स डू दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड लैप्लास इनवर्स ऑफ phi 1 s व्हिच इज लैप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर माइनस 9। ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला के वक्त ये वाला देखा था, फॉर्मूला ये ज्यादा यूज नहीं किया है। s अपॉन s स्क्वायर माइनस 9, तो इसका लैप्लास इनवर्स क्या आएगा, किसी को याद है? अगर s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 आता तो cos 3t होता। यस, वेरी गुड अभिनव, जीत, अनुपम, प्रज्ञा, अमित, करेक्ट, वेरी गुड। यस, अनुष्का, उत्कर्षा, परेश, ऑल ऑफ यू आर राइट। तो यहाँ पर आएगा cos हाइपरबोलिक 3t, करेक्ट भरत। यस अमोल, ओके तो ये आ गया cos हाइपरबोलिक 3t। तो ये वाले प्रॉब्लम में और एक चीज क्या डिफरेंट है, हम हाइपरबोलिक फंक्शंस के साथ डील कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज द अदर थिंग, बहुत सारी चीजें नई है देखो इस प्रॉब्लम में। ओके, तो ये हमारा मिल गया f1t। अब इसको तैयार करते हैं कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के लिए, तो हमें चाहिए f1u। सो आवर f1u विल बी cos hyperbolic 3u। ओके, next we take Laplace inverse of phi 2s. It is same as Laplace inverse of s upon s square plus 9. It is the same function. So इसका Laplace inverse भी आएगा cos hyperbolic 3t। 1 minute, अमोल आपने cos 3t लिखा है आंसर में, अमोल अमोल इसका लैप्लास इनवर्स में आपने आंसर में cos लिखा, हाँ टाइपिंग मिस्टेक। ओके ओके ठीक है, ओके वी कंटिन्यू। आई होप सबको यहाँ तक क्लियर है, किसी को डाउट है तो पूछ लेना। ओके ऑलराइट, तो ये cos हाइपरबोलिक 3t है और ये है हमारा f2t। ठीक है, अब इसको तैयार करेंगे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के लिए। इसमें क्या तैयारी करनी है, वी वांट f2 ऑफ t माइनस u, मतलब यहाँ t के जगह पे t माइनस u डालेंगे, तो वी गेट cos हाइपरबोलिक ऑफ 3t 3 इंटू टी माइनस यू। इसको ये 3 को ब्रैकेट के अंदर लेते हैं, सो दिस इज cos हाइपरबोलिक ऑफ 3t माइनस 3u, तो इसको हम ऐसे ही रखते हैं। सो दिस कंप्लीट्स आवर स्टेप 2। ओके, now next we go for the third step where we write the statement of convolution theorem. So by convolution theorem, Laplace inverse of phi 1s into phi 2s equal to integral 0 to t f1u into f2 t minus u du। ये स्टेटमेंट लिख दिया कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का। ये हर बार लिखना, ये स्टेटमेंट लिखने के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा सॉल्यूशन में। ओके, तो हर बार ये सॉल्यूशन में ये स्टेटमेंट लिखना। ओके, तो ये हमारा स्टेटमेंट है। अब इसमें हम सब्सटीट्यूट करेंगे phi 1s phi 2s f1u f2 t माइनस u। ओके, तो हमारा phi 1s था s अपॉन s स्क्वायर माइनस 9, phi 2s था s अपॉन s स्क्वायर माइनस 9, तो ये सब्सटीट्यूट किया। f1u है cos हाइपरबोलिक 3u, f2t माइनस u है cos हाइपरबोलिक 3t माइनस 3u। ओके, सो इसको सिंप्लीफाई करते, यहाँ पर ये वाला इंटीग्रल जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लाइड है। अगर ये हाइपरबोलिक फंक्शन है तो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है। ओके, अगर दो कॉस मल्टीप्लाई होता, हम कैसे क्या करते, 2 cos a cos b का फॉर्मूला यूज करके उसको सेपरेट करते और फिर इंटीग्रेट करते। ओके, तो यहाँ पर दो कॉस हाइपरबोलिक मल्टीप्लाइड है, तो इसके लिए हमें 2 cos हाइपरबोलिक a cos हाइपरबोलिक b का फॉर्मूला चाहिए। तो वो फॉर्मूला कैसे मिलेगा,
सेमेस्टर 1 में हमने इसका प्रोसीजर देखा था which was called as Osborne's rule. Okay, I don't know how many of you all remember it. मैं यहाँ पर उसका नाम लिखती हूँ, Osborne's rule. Okay, Osborne's rule क्या बोलता है कि अगर आपको हाइपरबोलिक फंक्शन का कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला चाहिए तो सबसे पहले उसका करस्पॉन्डिंग सर्कुलर फंक्शन, ये जो कॉस है इसको सर्कुलर फंक्शन बोलते हैं, ओके, ये सर्कुलर फंक्शन वाला फॉर्मूला लिखो। तो ये 2 कॉस हाइपरबोलिक ए कॉस हाइपरबोलिक बी का हमें फॉर्मूला चाहिए। तो ये फॉर्मूला तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला पता है, तो हमने ये फॉर्मूला लिख दिया, 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल टू cos of a plus b plus cos of a minus b. ओके, अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू ऑसबॉर्न्स रूल इस स्टेटमेंट में cos के जगह पे हमें cos हाइपरबोलिक रिप्लेस करना है, साइन के जगह पे अगर साइन होता तो साइन हाइपरबोलिक रिप्लेस करते। इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई टर्म में 2 साइन फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ओके, साइन ए इंटू साइन बी है या साइन स्क्वायर है या टैन स्क्वायर है, जब टैन स्क्वायर होता है तो उसमें इनडायरेक्टली 2 साइन फंक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं, या कोसेक स्क्वायर है या कॉट स्क्वायर है, ओके, तो 2 साइन फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वहां पे उस टर्म का साइन चेंज करना, अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव लिखना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव लिखना, ओके, ये ऑसबॉर्न्स रूल है। तो यहाँ पर देखो कोई साइन फंक्शन है ही नहीं, तो किसी भी टर्म का साइन चेंज नहीं होगा, तो हमें सिर्फ कॉस के जगह पे कॉस हाइपरबोलिक लिखना है। तो ये फॉर्मूला बनेगा 2 कॉस हाइपरबोलिक ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक बी इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस हाइपरबोलिक ऑफ ए माइनस बी। ओके, तो ये फॉर्मूला हमें इस इंटीग्रल के अंदर पहले यूज करना है। वहां पर एक 2 लगेगा हमें, तो सबसे पहले वो 2 एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिलेगा लप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर माइनस 9 द होल स्क्वायर। तो ये 2 को हमने अंदर एडजस्ट किया तो यहाँ बाहर हाफ आएगा। ओके, ये 2 को यहाँ पर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। नाउ वी यूज द फॉर्मूला, so this will be half here as it is, integral 0 to t. Now this will be cos hyperbolic of a plus b, that is 3u plus 3t minus 3u plus cos hyperbolic of a minus b, that is 3u minus 3t plus 3u. ओके, तो ये हमने 2 cos hyperbolic a cos hyperbolic b का फॉर्मूला यूज कर दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ एंगल वाले पार्ट को, सो दिस बिकम्स हाफ इंटीग्रल 0 टू टी कॉस हाइपरबोलिक ऑफ, यहाँ पर 3u और माइनस 3u कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 3t बचेगा, सो वी गेट कॉस हाइपरबोलिक 3t प्लस यहाँ पर 3u और 3u ऐड हो जाएगा और हमें मिलेगा 6u and minus 3t, so we get cos hyperbolic of 6u minus 3t. okay, so this is what we get. तो यहाँ पर हाइपरबोलिक फंक्शन सेपरेट हो गए, अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अभी पिछले प्रॉब्लम्स जो हमने कल देखे थे उसमें मैंने यहाँ पर इंटीग्रल को सेपरेट किया था। वो सेपरेट क्यों किया था, ताकि हम जो कॉन्स्टेंट्स है उसको इंटीग्रल के बाहर निकाल सके और कोई कंफ्यूजन ना हो। बट अभी इतने प्रॉब्लम्स हो जाने के बाद अभी आपको भी ये क्लियर हो गया होगा कि कॉन्स्टेंट्स को कैसे ध्यान रखना है। सो यहाँ पर ये वाला फर्स्ट टर्म अगर आप देखेंगे, सी इंटीग्रेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू यू, तो ये कॉस हाइपरबोलिक 3t, इसमें कोई u नहीं है, तो ये कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेट नहीं होगा। मतलब यहाँ पर इंटीग्रेट कौन होगा, कॉस हाइपरबोलिक 3t के साथ कौन मल्टीप्लाइड है, ये फर्स्ट वाले टर्म में इंटीग्रेट कौन होगा, 1, करेक्ट रितेश, अंकित, परेश, यस ऑल ऑफ यू आर राइट, यहाँ पर 1 इंटीग्रेट होगा और 1 का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू u है u। ओके, सो दैट आई एम राइटिंग इन द फर्स्ट स्टेप हियर, ये हाफ वैसा का वैसा, तो ये मैंने u पहले लिख दिया है ताकि वी डोंट गेट कंफ्यूज, इसको एंगल के साथ कंफ्यूज ना करें इसके लिए। एंड दिस cos हाइपरबोलिक 3t एज इट इज। ओके, तो ये पहले वाले टर्म का इंटीग्रल हो गया है। अब cos हाइपरबोलिक फंक्शन का इंटीग्रल क्या है, अभी हमने सेमेस्टर 1 में हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव और इंटीग्रल के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं किया था। ओके, बट आई विल जस्ट टेल यू,
when it comes to trigonometric function, derivative of sin x is cos x, derivative of cos x is minus sin x. Okay, but hyperbolic में क्या होता है, derivative of sin hyperbolic x is cos hyperbolic x and derivative of cos hyperbolic x is sin hyperbolic x. हाइपरबोलिक फंक्शन में कोई नेगेटिव साइन नहीं आता है, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन के डेरिवेटिव में भी कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन के डेरिवेटिव में भी माइनस नहीं आता है. मतलब इसका इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स with respect to x is cos hyperbolic x and integral of cos hyperbolic x with respect to x is sin hyperbolic x. यहाँ पर कोई माइनस का बिजनेस नहीं है. ओके ये हाइपरबोलिक फंक्शन की खासियत है. सो cos hyperbolic 6u minus 3t इसका इंटीग्रल है sin hyperbolic 6u minus 3t. इंटीग्रल इज विथ रिस्पेक्ट टू u, तो यहाँ u वाले टर्म को देखना है, उसके साथ 6 मल्टीप्लाइड है तो वो हमारे डिनोमिनेटर में आएगा. This has to be evaluated from 0 to t. Okay, ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट समझा. ओके गुड, वेरी गुड. ओके नाउ लेट्स कंटिन्यू. अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे लिमिट्स को. तो सबसे पहले हम t सब्स्टिट्यूट करते हैं. ओके सो फर्स्ट व्हेन वी पुट u इक्वल टू t, तो यहाँ पर ये हाफ वैसा का वैसा रहेगा. ये t यहाँ डाला तो हमें मिलेगा t इंटू कॉस हाइपोबोलिक 3t प्लस साइन हाइपोबोलिक 6t माइनस 3t अपॉन 6. तो पहला वाला लिमिट हमने डाल दिया. अब सेकेंड लिमिट जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये प्लस है तो ये माइनस होगा. यहाँ जब आप u के जगह पे 0 डालोगे तो 0 इंटू दिस विल बी 0. ओके यहाँ पर भी प्लस है, सेकेंड लिमिट डाल रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस इंटू माइनस बिकम्स माइनस. साइन हाइपरबोलिक ऑफ यहाँ 0 डालोगे तो दिस बिकम 0 माइनस 3t अपॉन 6. ये अब हमने लिमिट्स भी सब्स्टिट्यूट कर दिया है. नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस. ओके सो दिस वुड बिकम, ये हाफ यहाँ वैसा ही रहेगा, t cos hyperbolic 3t as it is plus sin hyperbolic of 6t minus 3t is 3t upon 6. ये 0 चला जाएगा. Now sin hyperbolic of 0 minus 3t is sin hyperbolic of minus 3t. sin hyperbolic function ये उसके अंदर एंगल के अंदर जो माइनस है उस मामले में बिल्कुल साइन फंक्शन की तरह बिहेव करता है, वो माइनस को बाहर फेंक देगा. कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन एकदम कॉस फंक्शन की तरह बिहेव करता है, मतलब वो माइनस को खा जाएगा. सो कॉस हाइपरबोलिक ऑफ माइनस थीटा इज कॉस हाइपरबोलिक थीटा. साइन हाइपरबोलिक ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा. तो ये माइनस को बाहर फेंका तो यहाँ ऑलरेडी एक माइनस है, माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस. वी गेट साइन हाइपरबोलिक 3t अपॉन 6. अब ये दो ऐड हो जाएगा, देखो यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक 1/6 साइन हाइपरबोलिक 3t प्लस 1/6 साइन हाइपरबोलिक 3t. सेम डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर ऐड होगा तो 2/6 साइन हाइपरबोलिक 3t मिलेगा. 2/6 can be written as 1/3. So we get the final answer as 1/2 into t cos hyperbolic 3t plus sin hyperbolic 3t upon 3. तो ये अपना फाइनल आंसर है. करेक्ट? क्या ये हमारा फाइनल आंसर है? नो, करेक्ट, गुड. ये हमने जो निकाला है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड देखो, दिस इज लैप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर माइनस 9 द होल स्क्वायर. ये हमारा क्वेश्चन नहीं है. ओके तो अभी हमारा सॉल्यूशन बाकी है. यस अमित, e raised to minus 5t is remaining. वेरी गुड. ओके तो हम थोड़ा रिकॉल करते हैं. अपना क्वेश्चन था लैप्लास इनवर्स ऑफ s प्लस 5 द होल स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 10s प्लस 16 द होल स्क्वायर. इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिखा था e raised to minus 5t इंटू लैप्लास इनवर्स ऑफ s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर माइनस 9 द होल स्क्वायर. ओके अब ये वाला लैप्लास इनवर्स का आंसर, ये लैप्लास इनवर्स का आंसर ये हमने फाइंड आउट किया. सो दिस वी विल सब्स्टिट्यूट हियर. वी विल गेट e raised to minus 5t upon 2 into t cos hyperbolic 3t plus sin hyperbolic 3t upon 3. Now is this our final answer?
Is this our final answer? Yes. Okay, correct. This is our final answer. Okay. So did we understand this problem? ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा लेंदी था, बहुत सारे नई चीजें इंट्रोड्यूस हुए हैं इस प्रॉब्लम में, सेमेस्टर 1 के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें हमें याद करने पड़े हैं. बट देन वर यू कंफर्टेबल विद द एंटायर सॉल्यूशन? किसी को इसमें कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं. दिस वाज द लास्ट प्रॉब्लम इन कन्वोल्यूशन थ्योरम. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज द फाइनल टाइप. तो ये वाले टाइप या ये वाले प्रॉब्लम में कुछ भी डाउट है तो यू कैन प्लीज आस्क. ओके, so I think all good. We move on to the next question. Okay. नेक्स्ट टाइप कौन सा था? द फाइनल टाइप. अभी अभी तक हमने जो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया है, हमारा जो फंक्शन था इट वाज ऑलवेज अ रैशनल फंक्शन, एक फ्रैक्शन था, मतलब एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर वाज अ फंक्शन ऑफ एस, दैट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ एस. डिनोमिनेटर वाज आल्सो एन अलजेब्रिक फंक्शन ऑफ एस. ओके, रैशनल फंक्शंस थे. उसके अलावा हमने अभी तक इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में और कोई फंक्शन नहीं देखा. ओके, अब ये यहाँ पर वो पार्ट डिफरेंट है. नाउ वी आर गोइंग टू सी, अगर हमारे फंक्शन में लॉग या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, हमारे सिलेबस में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में tan इनवर्स और cot इनवर्स के प्रॉब्लम्स होंगे. ओके, इनके अलावा और कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे. सो अगर ये इन दो टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करना है. ओके, सो वी हैव टू फाइंड लैप्लास इनवर्स ऑफ log ऑफ s प्लस a अपॉन s प्लस b. इसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा. ओके, लेट अस सी व्हाट दैट प्रॉपर्टी इज. अगर आप देखेंगे, वी नो हाउ टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ रैशनल फंक्शन. ओके, अलजेब्रिक फंक्शन न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में है, तो उसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड आउट करना है ये हमें पता है. तो ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसको हमने किसी तरह रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया. ओके, यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलजेब्रिक है, ऐसा फंक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो वहां से फिर हमें कैसे प्रोसीड करना है ये पता है. सो नाउ द क्वेश्चन इज, लॉगरिथमिक फंक्शन को अलजेब्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कैसे करें. तो वहां पर आपको ये रिलेशन दिखेगा, लॉग का डेरिवेटिव जो है, फॉर एग्जाम्पल लॉग एक्स, ओके, उसका डेरिवेटिव है 1/x. सो लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो अलजेब्रिक है. मतलब यहाँ पर अगर हमने डेरिवेटिव लिया इस फंक्शन का, लैप्लास इनवर्स के अंदर अगर हमने डेरिवेटिव लिया तो हमारा काम बन जाएगा. बट नाउ वी वांट टू नो कि कैन वी टेक लाइक दैट, कैन वी टेक डेरिवेटिव लाइक दैट, ऐसे हम डेरिवेटिव ले सकते हैं क्या लैप्लास इनवर्स के अंदर? तो आंसर इज यस. सो फॉर दैट वी हैव टू यूज वन प्रॉपर्टी, दैट इज इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव वाला प्रॉपर्टी. ओके, आई थिंक 1 मिनट, ये यहाँ पर जो है ना एक डैश मिस हो गया है. 1 सेकेंड, दिस इज स्टिल लोडिंग. थोड़ा इक्वेशंस है ना, थोड़ा भारी हो गया है. या सी दिस वन, हाँ, यहाँ पर वी हैव मिस्ड आउट वन डैश. यस, नाउ वी आर गुड. हाँ, तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी कौन सा यूज कर रहे हैं? लैप्लास इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव फाई डैश एस का मतलब है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस ऑफ फाई ऑफ एस. ओके, सो फाई ऑफ एस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है उसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? नहीं नहीं, सॉरी, वेट वेट वेट, नो नो नो, दैट वाज करेक्ट. Derivative is on the right hand side. Okay, sorry, I goofed up. हाँ, सॉरी, लैप्लास इनवर्स ऑफ फाई ऑफ एस है आपके पास, आपको इसका डेरिवेटिव लेना है. ओके, तो अभी लैप्लास इनवर्स के अंदर अगर आपको डेरिवेटिव लेना है तो बाहर -1/t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा.
दिस इज लप्लास इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव्स का प्रॉपर्टी. ओके, आई रिपीट अगेन. लप्लास इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव्स प्रॉपर्टी क्या है? अगर आपके पास लप्लास इनवर्स ऑफ फाई ऑफ एस है, देन लप्लास इनवर्स ऑफ फाई ऑफ एस इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप अंदर डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो बाहर क्या करना है? माइनस 1/t से मल्टीप्लाई करना है. ओके, सो दिस वी विल बी यूजिंग हियर. तो हियर देखो, हमें अंदर डेरिवेटिव लेना है लॉग फंक्शन का, तो बाहर माइनस 1/t से मल्टीप्लाई किया. सो दिस इज माइनस 1/t लप्लास इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s ऑफ log ऑफ s प्लस a अपॉन s प्लस b. अब इस लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के लिए ये अंदर का हम पहले सॉल्व करेंगे, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. यहाँ पर log ऑफ a अपॉन b का फॉर्मूला यूज करते हैं. So that gives us minus 1/t Laplace inverse of derivative with respect to s of log of s plus a minus log of s plus b. अब derivative लेना आसान रहेगा. Okay, now let's take the derivative. So this is minus 1/t into Laplace inverse of derivative of log of s plus a is 1 upon s plus a minus log of s plus b का derivative है 1 upon s plus b. ओके, अब ये दोनों टर्म्स इफ यू सी स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर वाले टर्म्स है, सो वी कैन सेपरेट दिस यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी. सो वी गेट माइनस 1/t लप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस a माइनस लप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस b. यस, वेरी गुड ध्रुव, सिर्फ एक माइनस आपका रह गया. आपका आंसर सही है, या 1/t के साथ एक माइनस मल्टीप्लाइड है ना, ये भी रहेगा. ओके, सिर्फ आपका एक माइनस छूट गया है. ओके, तो ये -1, हाँ, -1/t. अब ये लप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस a क्या है? e रेज टू माइनस at. ये माइनस लप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस b क्या है? e रेज टू माइनस bt. इफ यू वांट यू कैन टेक दिस माइनस इनसाइड, तो ये बन जाएगा e रेज टू माइनस bt माइनस e रेज टू माइनस at, या फिर इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं. ध्यान रखना कि ये माइनस को भूले ना. ओके, अदरवाइज द आंसर विल नॉट बी करेक्ट. डिड वी अंडरस्टैंड दिस? ये शुरू में मैंने थोड़ा यहाँ आपको कंफ्यूज किया, बट ये वाला प्रॉपर्टी आपको समझ में आया? ये बहुत ही आसान है. वेरी इजी, राइट? या ओके. अब इस टाइप के, ये हमारा फाइनल टाइप है, इस टाइप के हम दो और प्रॉब्लम्स देखेंगे. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम. We have to find Laplace inverse of log of s square plus a square upon s square plus b square. Okay, अब ये log function है, तो log function देखते ही Laplace inverse है, log function है, तो कौन याद आएगा? Laplace inverse of derivative property. Okay, Laplace inverse of derivative property क्या है? Derivative ले लो Laplace inverse के अंदर और बाहर -1/t से मल्टीप्लाई कर दो. So let's do that. तो यहाँ -1/t से मल्टीप्लाई किया, दिस विल बी इक्वल टू -1/t इंटू लप्लास इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s ऑफ log ऑफ s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब log है तो ये डेरिवेटिव के लिए पहले इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. तो दिस विल बी -1/t इंटू लप्लास इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s ऑफ log ऑफ s square plus a square minus log of s square plus b square. Okay, now it is easy for us to take the derivative. So let's take the derivative. This is -1/t here as it is, Laplace inverse of, अब log of s square plus a square, log का डेरिवेटिव यूज करेंगे तो 1 अपॉन s square plus a square आएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ s square plus a square क्या आएगा? 2s plus 0, that is 2s. तो ये 2s यहाँ है, माइनस log ऑफ s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2s प्लस 0, दैट इज 2s. यहाँ पर ये प्लस जो है ऊपर चला गया है, दिस शुड बी हियर. ओके, दिस आई विल एडिट इट एंड ब्रिंग इट डाउन ओवर हियर. ठीक है, तो ये इंटू 2s. ऑल राइट, तो यहाँ पर ये जो 2 कॉमन है दोनों टर्म्स में, उसको हम बाहर निकालेंगे. सो वी गेट -2/t इंटू लप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस s अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर.
दोनों भी स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर है, तो हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करके इसको सेपरेट करेंगे. सो वी गेट -2/t Laplace inverse of s upon s square plus a square minus Laplace inverse of s upon s square plus b square. ओके, अब यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे. सो वी गेट -2/t Laplace inverse of s upon s square plus a square is cos at minus Laplace inverse of s upon s square plus b square is cos bt, and that is the final answer. Did we understand this? तो log में एक s वाला देखा और एक s square वाला भी देख लिया हमने. Okay, all right. Now just one more problem we'll see involving tan inverse. Inverse trigonometric का tan inverse हो सकता है आपको या फिर cot inverse. Okay. So let's see how to find Laplace inverse of tan inverse of s plus 1. Laplace inverse देखा, tan inverse function देखा, तो कौन याद आया? Laplace inverse of derivative का property. It says Laplace inverse of phi of s is equal to, इसको simplify करने के लिए अंदर derivative लेना है, तो at the same time बाहर -1/t से multiply करेंगे तो it will still be equal. Okay, so this is -1/t into Laplace inverse of derivative with respect to s of tan inverse of s plus 1. अब यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर. सो tan इनवर्स ऑफ s प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या रहेगा? दिस इज -1/t हियर एज इट इज. Laplace इनवर्स ऑफ 1/s प्लस 1 द होल स्क्वेयर प्लस 1. ओके, तो ये हमने डेरिवेटिव लिख दिया. अब अगर हम डिनोमिनेटर को देखें, यहाँ पर इस s प्लस 1 के जगह पे अगर हम s रिप्लेस कर सके तो फिर हमारा स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर बन जाएगा. तो लेट्स रिप्लेस दिस s प्लस 1 बाय s. उसके लिए बाहर मल्टीप्लाई करना है e रेज टू माइनस t से. सो वी मल्टीप्लाई आउटसाइड. वेट वेट सॉरी, आई थिंक एनिमेशन के ऑर्डर में कुछ गड़बड़ हो गया है. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. हाँ, हाँ, ओके, ये हमने देख लिया. हाँ, तो यहाँ पर s प्लस 1 के जगह पे s रिप्लेस किया, तो फिर बाहर e रेज टू माइनस टी से मल्टीप्लाई करना है. सो वी गेट माइनस e रेज टू माइनस टी अपॉन टी इंटू लैप्लस इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस 1. अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. सो दिस इज माइनस e रेज टू माइनस टी अपॉन टी इंटू साइन टी, और ये हमारा फाइनल आंसर है. राइट? So how did you all find inverse Laplace transform of derivatives wala property? Very easy, right? Okay. So I have given you practice problems for this. Okay, इसके practice problems दिए हैं. With this we complete the topic on inverse Laplace transform. अच्छा, yesterday's content I have not uploaded. आज का जो हमारा पहला प्रॉब्लम था कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, वो एक्चुअली आई हैड टोल्ड यू ऑल ना, आई वाज सपोज्ड टू टेक इट यस्टरडे, बट देन आई सिंस इट वाज आफ्टरनून लेट, तो आई डिड नॉट टेक इट. तो आज का जो टाइप है इसका प्रैक्टिस प्रॉब्लम कल वाले मटेरियल में है. ओके, इट इज देयर इन यस्टरडेज मटेरियल. सो आई विल बी अपलोडिंग कल का मटेरियल और आज का मटेरियल, दोनों अभी अपलोड करूंगी, तो दोनों आप प्रैक्टिस कर लेना. ओके, so with this we complete module 2 of our syllabus, and that is inverse Laplace transform. All right, now in the next lecture, that is on Monday, we will start with the next topic, and that is Fourier series. Okay, now
यू नो आर ओके, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में किसी को कुछ डाउट है? नहीं है तो आई हैव एन अनाउंसमेंट टू मेक फॉर 3 to 4 minutes. तो उससे पहले किसी को व्हाट सीरीज? फूरियर सीरीज वो क्या है वो हम देखेंगे. इट इज लाइक 2.5 week 3 week ये हमारा टॉपिक चलेगा. हाँ, तो वो क्या सीरीज है, आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो हमें 3.5 हफ्ता पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा व्हाट सीरीज इट इज. ओके, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन चैप्टर में आपको पता चल जाएगा. इन डिटेल यू विल नो व्हेन वी आर डूइंग द चैप्टर टॉपिक. ओके, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कोई डाउट है? अच्छा लगा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म? लैप्लास ट्रांसफॉर्म अच्छा लगा? लैप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन सा लगा? बोथ. लैप्लास. कोई नहीं. भरत, भरत कहाँ पर है? भरत, क्यों अच्छा नहीं लगा? और किसी को अच्छा नहीं लगा? और किसी को अच्छा ऐसे ही? ये क्या रीजन हुआ? प्रैक्टिस किया है आपने? अभी सब सेफ मोड में चले गए. बोथ आर गुड, बोथ आर गुड. ओके, ठीक है. सी दीज आर टू टॉपिक्स विच नीड्स प्रैक्टिस. यस, आई अग्री. बहुत सारे प्रॉपर्टीज देखे, बहुत सारे टेक्निक्स देखे हमने, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज देखे. सब ध्यान में रखने के लिए हमें प्रैक्टिस लगेगा. लैप्लास का हुआ है. ओके, वेरी गुड भरत. नाउ स्टार्ट विद इनवर्स लैप्लास आल्सो. ओके, now I think 17th 18th and 19th of September your IIT 1 is scheduled. Okay, तो आपका IIT 1 के लिए जो मैथ्स का सिलेबस है that is the first 2 modules. तो आज तक हमने जो किया है, so I have completed the second module today. आज तक हमने जो किया है ये दोनों टॉपिक्स, ये दोनों मॉड्यूल्स आपके इंटरनल असेसमेंट टेस्ट 1 के लिए रहेंगे. ओके, आई विल बी uploading a question bank for your IIT 1. आई एम प्लानिंग टू डू इट बाय टुमारो. अगर कल तक नहीं हुआ तो पक्का संडे तक तो हो जाएगा. अगर संडे तक नहीं हुआ तो मुझे जरा मैसेज कर करके परेशान करना ताकि आई विल रिमेंबर एंड आई विल अपलोड द क्वेश्चन पेपर एंड ये सॉरी क्वेश्चन बैंक. ओके, तो वो क्वेश्चन बैंक में एंड देन क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, all that details I will be telling you a bit later. For sure. Okay. So question paper pattern, all that I will tell you all a bit later. But question bank आपको maximum Sunday तक मिल जाएगा. Okay. और आपका टुमारो सैटरडे. अभी आपका ये जो नेक्स्ट मिनी प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम भी आ जाएगा. एक ही मिनी प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम हर एक ग्रुप को मिला है. एंड लेट मी टेल यू अबाउट द मिनी प्रोजेक्ट. यू पीपल हैव डन अ वंडरफुल जॉब. ध्रुव, मोड ऑफ टेस्ट डियर विल वेट फॉर अ लिटिल बिट. थोड़ा वेट करते हैं. मुझे ज्यादा डिटेल्स जैसे ही पता चलेगा आई विल इन्फॉर्म यू. ऑफ कोर्स इट विल बी ऑनलाइन. हाँ, वो एमसीक्यू है, सब्जेक्टिव है या फिर दोनों मिक्स है. प्लीज वेट फॉर सम टाइम. ओके, एक बार डिपार्टमेंट लेवल पर डिस्कशन हो जाएगा देन आई विल बी इन्फॉर्मिंग यू. ओके, मे बी बाय टुडे. आज क्या डेट है? आज 4th है ना. सी 17th 18th को है आपका, करेक्ट ना? तो मैक्सिमम बाय 10th आई शुड बी एबल टू टेल यू. The timetable, yeah, we will wait for the timetable to come. When will be the exam? 17th 18th 19th is IIT 1. मैथ्स पेपर किस दिन होगा? we'll have to wait for the timetable. ठीक है.
Okay, and I was talking about the mini project. Mini project ka you people have done wonderful job. The kind of presentations, the kind of videos you all have prepared, excellent. Okay, so I have graded your mini project का assignments. I will be releasing the grades soon. Okay, तो फिर वो आपको भी दिखाई देगा classroom में. Okay. Any questions? Any doubts? Anything you all want to know?